Stock market, therefore, has reacted positively. We see institutional investors coming back to Pakistan. It's our agriculture GDP, which is growing at 5%. The current account deficit side had surpluses. During this fiscal year, our current account deficit is going to be less than $1 billion. Our foreign exchange reserves have, alhamdulillah, recovered to almost over $9 billion. معاشی اصلاحات ہمارا ایجنڈا ہے. بہترین معاشی پالیسیوں سے استحکام آ رہا ہے. توانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا پاکستان سعودی عرب کو بڑا بھائی سمجھتا ہے, ہمیں مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. وزیر تجارت جام کمال نے کہا پاکستان نجی شعبوں کو بھی ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرے گا. نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC سرفراز احمد نے کہا کہ پاکستان دنیا کے لیے ایک بڑا تجارتی ہب ہے. Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We would like to see Pakistan as one of our leading international partners. سعودی عرب پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موزوں ہے. سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف المبارک کا سرمایہ کاری فورم سے خطاب. کہا بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں. سعودی سرمایہ کاروں کا 50 رکنی وفد گزشتہ روز پاکستان پہنچا تھا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 833 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس دوبارہ 72,000 کی سطح عبور کر گیا. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت. وفاق کا 3 رکنی بینچ پر اعتراض. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اپیلیں لارجر بینچ ہی سن سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اعتراض مسترد کر دیا. جسٹس منظور علی شاہ نے کہا اپیلیں قابل سماعت قرار پائیں تو کوئی بھی بینچ سن لے گا. پوچھا کیا جس پارٹی کی بات کی جا رہی ہے وہ رجسٹرڈ ہے؟ کیا اس کو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا تھا؟ الیکشن کمیشن حکام ریکارڈ سمیت فوری طلب. خیبر پختونخوا حکومت کا کل سے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری شروع کرنے کا اعلان. وزیر خوراک ظاہر شاہ تور کہتے ہیں کہ کاشتکاروں سے 3900 روپے کے حساب سے گندم خریدیں گے. 22 مراکز بنائے ہیں. خریداری پہلے آئیں پہلے پائیں کے اصول پر ہوگی. پنجاب میں سرکاری سطح پر گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی. کسان اتحاد کے رہنما خالد حسین باٹ کا کہنا ہے کسانوں سے کوڑیوں کے دام گندم خریدی جا رہی ہے. GT روڈ کے ساتھ ریلوے ٹریک پر بھی احتجاج کریں گے. ضرورت سے زیادہ گندم درآمد کرنے کی تحقیقات. انکوائری کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا. کسی کو طلب نہیں کیا گیا. کمیٹی کی رپورٹ تکمیل کے مراحل میں ہے. مکمل ہونے پر آج وزیر اعظم کو پیش کیے جانے کا امکان. ہم یہی آپ کو ایکسپلین اور عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس وقت چائے کی پیالی میں ایک طوفان مچا ہوا ہے, ہم نے جو یہ پروکیورمنٹ کرنی تھی یہ پاکستان کے ایکسچیکر کے پیسے سے کرنی تھی, جو ہم نے منع کر دی. پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا. اس سے جو امپورٹ ہوا ہم نے آپ کے خزانے میں کچھ $1 ملین ٹیکس کی صورت میں کما کے آپ کو دے دیے. گندم امپورٹ کا معاملہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. معاملے میں جھول ہے, بحران ہے, نہ کرپشن. تحقیقاتی کمیٹی میں طلبی ہوئی تو ضرور جاؤں گا. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سوال جی ہے میں انٹرویو. کہا گندم درآمد پر پابندی اٹھا کر نجی سیکٹر کو سہولت دی کہ خود بھی کماؤ اور ہمارے لیے بھی کماؤ. عالمی سپلائی چین متاثر ہونے پر نجی سیکٹر کو گندم امپورٹ کی اجازت دی گئی. ہمارے دور سے پہلے ہی نجی سیکٹر کو گندم درآمد کی اجازت تھی. کورونا میں گندم خریداری کے SRO زبانی PTI دور حکومت میں جاری ہوئے تاکہ آسانی سے ملک میں گندم آئے اور مارکیٹ میں گیپ نہ آئے. کتے کا کھانا باہر سے منگوانے پر اشرافیہ کو اعتراض نہیں, غریب کو سستی روٹی ملنے پر اعتراض کیا جاتا ہے. بولے نگراں وزیر اعظم رہا, ڈیپٹی پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ کا عہدہ کیسے لے سکتا ہوں. مارچ میں گندم درآمد کے وقت وزارت خوراک شہباز شریف کے پاس تھی. ذرائع کا انکشاف,
शहबाज हुकूमत के पहले 6 माह 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान 3 अप्रैल को दिया गया। वजीर आजम ने गंदम दरामद के मामले पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को हटा दिया था। पंजाब हुकूमत के मना करने के बावजूद वफाक ने 8.5 लाख टन गंदम इंपोर्ट की। 25 मार्च को सेक्रेटरी फूड पंजाब की जानिब से वफाक को लिखा गया खत भी सामने आ गया। खत में लिखा गया, अब तक 34.5 लाख टन गंदम इंपोर्ट हो चुकी। पंजाब में काश्त का रकबा बढ़ने पर गंदम की पैदावार 2 करोड़ 13 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 42 लाख टन मुतवक्के है। इंपोर्ट जारी रही तो न सिर्फ मार्केट में गंदम सरप्लस होगी बल्कि किसान भी मुतासिर होगा। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे खुलने का इम्कान। सऊदी अरब के सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। सऊदी वफ्द 30 से ज़ायद कंपनियों के 50 सरमायाकारों पर मुश्तमिल है। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायजा लेगा। पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तिदाई सेशन आज शुरू होगा। 10 से 15 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स ज़राअत, कानकनी, इंसानी वसाइल, तवानाई और दीगर शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। मौजूदा रिफाइनरी, IT, मजहबी सयाहत, टेलीकॉम और दीगर शोबे भी ज़ेरे बहस आएंगे। इस्लामाबाद के बाद कराची से भी हज परवाजें रूट टू मक्का के तहत जाएंगी। प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब का 82 रुकनी वफ्द आज कराची पहुंच रहा है। आज़मीन हज के लिए कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन काउंटर्स होंगे। सऊदी वजारत दाखिला के एहलकार आज़मीन हज की इमिग्रेशन करेंगे। कराची से पहली हज परवाज 9 मई को रवाना होगी। आपने कैटेगोरिकली कहा वजारतें नहीं लेंगे, ये रिविजिट हो सकता है? Anything can happen in politics. Can't rule out things ना। ये फैसला हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर कन्वे किया चेयरमैन बिलावल साहब को, जो भी फैसला CEC करेगी फिर वो कन्वे कर दिया जाए। वफाकी काबीना में जाना चाहिए या नहीं, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। PP रहनुमा नैयर बुखारी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। नून लीग का इसरार था पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो। नून लीग हुकूमत चलाए, पॉलिसियां बनाए, PP हिमायत करेगी। PP की जानिब से हुकूमत को खतरा नहीं होगा। जजेस तकर्री पर कोई तजावीज़ आई तो PP ज़रूर देखेगी। आईनी तरमीम फर्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए। की वजीर कानून तारड़ साहब जिसने उस दिन एक इशारा भी दिया, कानून में कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं, चीफ जस्टिस है उसके टेन्योर में इजाफे के हवाले से उसने इशारा दिया है। मैं समझता हूँ कि ये डिजास्टर होगा। अगर आप किसी का हक मारेंगे और किसी को प्रमोट करेंगे, उसको ज्यादा वक्त देने के लिए, इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात है। जजेस तकर्री की मुमकिना तरमीम का मकसद सियासी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा असद कैसर का कहना है, तरमीम किसी को प्रमोट या और किसी को इदारे से अलग करने के लिए की जाएगी। ऐसी तरमीम इदारों की तबाही का बायस बनेगी। मौजूदा पार्लियामेंट ऐसी तरमीम का अखलाकी, सियासी और कानूनी जवाब नहीं रखती। ऐसी किसी भी कानून साजी के खिलाफ हर सतह पर जिदोजहद करेंगे। किसानों का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। 10 मई को मुल्तान से तहरीक शुरू होगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा, गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी, फिर भी दरामद की गई। गंदम की दरामद के लिए $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया गया। काश्तकार मुहिब्बे वतन है, अपनी ज़मीन या पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। जिम्मेदारों को फांसी दी जाए। हुकूमत ने जिस रेट पर जो मुकर्रर किया है किसानों से वो गंदम खरीदे, लेकिन वो तो उसे कमतर पर भी नहीं खरीद रही और ना उनको बोरियां और बारदाना दे रही है। हुकूमत ने गंदम खरीदी ना बारदाना दिया। महीनों की मेहनत खुले आसमान तले पड़ी है।
फैसलाबाद के किसानों का घंटा घर चौक पर एहतजाजी धरना, जमात इस्लामी भी एहतजाज में शामिल हो गई। 4 रोज तक शाम 4 से 7 बजे तक एहतजाज होगा। किसानों का कहना है हुकूमत ने गंदम का रेट 3,900 रुपए फी मन लगाया, लेकिन खरीदारी नहीं कर रही। 4 रोज तक गंदम खरीदारी का फैसला नहीं किया गया तो वजीर आला हाउस पर एहतजाज होगा। किसानों ने खबरदार किया, हुकूमत ने गंदम न खरीदी तो अगले साल गंदम को तरसेगी। तो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है। शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। पीटीआई का किसानों का साथ देने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है, हम किसानों के साथ खड़े होंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है, जबरो जुल्म पर असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाऊंगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई। विफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की जाती रही? हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से किसान रुल गए। हुकूमत के पास किसानों की रिलीफ के लिए कोई प्लान नहीं। चीनी एक्सपोर्ट करनी है या नहीं, वजीर आजम ने जायजा लेने की हिदायत कर दी। जराये का कहना है मुकामी ज़रूरत पूरी होने की शर्त पर चीनी की बरामद पर गौर किया जाएगा। चीनी की कीमत में इजाफा ना होना यकीनी बनाया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने का मुतालबा कर रखा है। पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी गई है। चेयरमैन पीसीबी का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। गद्दाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। जीत आपके लिए और हार मेरे लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहरा करें, फतह कदम चूमेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज में ज़ोहराना भी दिया।